आजकल जो गाने होते हैं उसमें बोल होते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होती है, कहानी नहीं होती है. तो you connect for that instance, but you don't relate to it. Yeah. When certain songs like Tanha Dil, you relate to it because वो कहानी है कि आप अपने घर से दूर हो या अपनों से दूर हो, और फिर भी आप उस सफर में आपको you have to carry on with your life at that situation. Over the years, मतलब वो मस्ती वाले वो सब वो उस तरह के भी गाने सब थोड़े बहुत क्या बोलते हैं, मेल आइटम सॉन्ग्स भी किए या फिर डांस पार्टी गाने भी किए, कुछ सीरियस बहती हवा सा था वो टाइप के गाने भी हुए, कुछ जब से तेरे नैना भी हो गया, चांद को भी सिफारिश कर लिया, 4 कदम भी चल लिए, तो फिर मम्मा सुन मम्मा देखे मम्मा ना उससे बड़ा मम्मा, ये सब भी कर लिया करेंगे तम्मा 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 तम्मा. अब श्वेता जी देखिए, आपने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन दिया है तो मुझे इतना अच्छा लगा. और एक बात आपको बताऊं कि आप ये जिसका इंटरव्यू ले रही हैं ना, शान, ये भी मेरा बहुत बड़ा फैन है. जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण. उदित जी, दानुदा, अभिजीत दा, सोनू निगम साहब, सबने मुझे बहुत टाइम पे जब भी बहुत प्यार मिला है, एडवाइस देते रहते हैं. एडवाइस तो नहीं कहूँगा, सजेशंस देते रहते हैं. मैं गले की ठीक ख्याल नहीं रखता हूँ, तो उस पर भी कई बार बताते हैं कि गर्म पानी पिया करो. शांत, बहुत जोर से बात मत कर शांत भैया थोड़ा सॉफ्टली बात कर यार, तो बहुत स्ट्रेन पड़ता है गले पे. All right, so today I have with me someone who's made us all fall in love with his music. Someone जिनको देख करके, जिनको सुन करके ही नहीं, उनको देख करके भी we automatically have a big smile on our faces. Joining me today is one of my most favorite singers, Shan. Shan sir, welcome. How are you? Hi Shweta, I'm good, and lovely to see your beautiful smiling face, and glad to be here with you. So आप बताइए. But it's so good to have you. It's so good to see you. And the smile is, of course, because you're here. So, like I said, automatically we have a smile on our faces with you being here. So, yes, it's so good to see you. Sir, first of all, I want to know, how have you been all this while? The last 1 year has been very difficult for everybody. What have you been up to? How are you keeping yourself sane? No, it's been an interesting year for all of us, or we have no choice, Shweta. We have to keep ourselves sane. We have to believe that जो कुछ भी हुआ, अब आने वाला वक्त अच्छा ही है, और खुद को optimistic रखना ही हमारे हाथ में. 2020, of course, in terms of live shows or in terms of fresh recordings, has been a little quiet, but it gave me an opportunity to create my own music. I have my own studio at home, so I learned a little stuff on my own to create music, और तो काफी सारे गाने बनाए, जैसे ये यकीन, ये गाना भी जो अब रिलीज हो चुका है. This all thanks to lockdown. तो कुछ अच्छे लिरिसिस्ट और अच्छे प्रोग्रामर्स के साथ भी today it's all quite easy. आप अपने घर में बैठे बैठे ही एटलीस्ट ऑडियो बना सकते हैं, और वीडियो के लिए ऑफ कोर्स अच्छे लोकेशंस में जाने पड़ते हैं. सो ये सब चला साथ साथ. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट के ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स कहें या कुछ ना कुछ टेलीविजन शोज, kept myself busy through 2020. I want to talk a little about so I have seen a lot of your interviews, stage shows, and all of these public appearances that you've made over the years. पूरे इतने टाइम में एक गाना है जिसकी बात हमेशा होती है, which is of course Tanha Dil, that released in 2000 and it's 2001 and it's been more than 20 years and people still connect with it no matter in what stage of their lives they are in. एक वो connect है, एक वो nostalgia जुड़ा है उस गाने के साथ आज भी. It's so fresh to the ears whenever you listen to it. In comparison to, like, अगर contrast में देखें versus to the songs that we have today, they don't really have that feel, कि उनको हम बहुत सालों बाद भी सुने and then we feel the same way that we felt, or we just connect with them instantly.
Most of the songs that we hear today are sadly recreations of iconic songs, which is kind of sad. Apart from that, जो original songs भी होते हैं, again, like they don't have that kind of a feel in it. Why do you think that there is? Why do you think that the audience is not really able to connect with the kind of songs that there are being made now? तन्हा दिल की जो एक there's a narrative to the song, एक कहानी है उसकी लिरिक्स में ही. तो आजकल जो गाने होते हैं उसमें बोल होते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होती है, कहानी नहीं होती है. तो you connect for that instance, but you don't relate to it. Yeah. When certain songs like तन्हा दिल, you relate to it because वो कहानी है कि आप अपने घर से दूर हो या अपनों से दूर हो, और फिर भी आप उस सफर में आपको you have to carry on with your life at that situation, knowing that you're not probably going to meet your loved ones or your own, because आप कई बार आप गांव से शहर आते हैं, शहर से किसी और देश जाते हो. So there is a you relate to the lyric of that song and that feel of that song. So I think lyrics play a big role in things. गाने जिसमें थोड़ी सी philosophy हो, गाने जिसमें थोड़ी सी एक thought हो, एक take away हो ना, तो वो गाना आपके साथ और लंबा रहता है, और उस गाने के साथ आपकी जो memories हैं या आपकी जो बातें हैं वो जुड़ जाती है, क्योंकि you relate to that song at that moment. Sure. कई लोग अभी कहते हैं कि तन्हा दिल मैं जब बोर्डिंग स्कूल में गया तो वो गाना मैं कनेक्ट कर गया अपनों से दूर, या फिर मैं पहली नौकरी के लिए जब I moved to Delhi or I moved to Bombay, so that song was my constant companion. तो वो गाने जो आपके दोस्त बन जाते हैं, जो आपके कंपेनियन बन जाते हैं, तो वो गाने लंबे चलते हैं. ऐसे गाने अभी भी बन रहे हैं, और वही है कि एक्चुअली अभी क्या हो गया कि इतना ज्यादा सब कुछ इतना इंस्टेंट सा होने लगा है कि गाना अगर आज नहीं चले, there's nothing like a slow burn. तभी ऐसा वक्त था कि गाना बनाते थे कि आज नहीं तो कल लोग पसंद करेंगे. अब ये कि आज पसंद नहीं किए तो कल उसका गाने का है ही नहीं, because there's so much of overload on the digital space that if your song doesn't hold in the first week or two, like films also nowadays, films, एक जो ट्रेंड शुरू हुआ था कि पहले वीकेंड में फिल्म more than 60% बिजनेस कर लेता है, इतने सारे प्रिंट्स डाल देते हैं ताकि, so everything has become more instant today. लेकिन कुछ चीजें फिल्टर होके रह जाती है, और वो हर जनरेशन के ऐसे गाने हैं. जैसे अगर आज कोई 90s के जनरेशन है तो उनके लिए तन्हा दिल एक आइकॉनिक टाइप का गाना है, लेकिन उससे पहले वाले जो हम लोग समझ लीजिए, हम लोग 80s वाले जनरेशन है या 70s वाले जनरेशन है, तो हमारे लिए दूसरे गाने हैं जो हम बहुत कनेक्ट करते हैं. सो या फिर जो और भी यंगर्स जो ये 95, 96 या 2000 मिलेनियल्स जो हैं, उनके लिए शायद कुछ और गाने होंगे. So it's a song that you listen to in that growing up, that 12 to 16, that really that you hold on to for a long time in life. But ऐसा मुझे लगता है. Yeah, I think you're right. But I think most of your songs, yesterday while I was prepping a little for this interview, doing a little bit of a research, I was just going through the discography of, your entire career and seeing all the kind of songs that you've sung. And I just had this thought that, oh, ye bhi to gaana hai, oh, ye bhi to gaana hai. And, all of these songs I have loved so much, and enjoyed so much. No, I'm very fortunate, I'm very lucky, Shweta, कि बहुत सारे अलग-अलग किस्म के गाने मुझे मिले हैं. कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी सिंगर एक बार टाइपकास्ट हो जाए तो उनको वही गाने बार मिलते रहते हैं. अगर उसको डांस गाने लोग उसकी पसंद हो गए 2-3, तो उनको वही एक तरह के डांस गाने मिलते हैं. फिर एक गाना दूसरे गाने को खा जाता है. जो आजकल वैसे भी हो रहा है कि जब आप हम सब के बहुत ही चाहिए, जैसे अरिजीत सिंह का एक गाना दूसरे गाने पर हावी हो जाता है, क्योंकि एक ही जोन में गाने आते रहते हैं. लेकिन जब वो कुछ एकदम अलग किस्म का कोई गाना, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर, हर किस्म के गाने वो गाते हैं, लेकिन अगर कॉम्पोजिशन वही मिलता गया, वही बातें कहते गए, तो वो मोनोटनी आ जाती है. सो आई एम वेरी लकी दैट मुझे अब तक वो किसी एक वो सैड लव सॉन्ग्स या कोई उस तरह का कैटेगरी नहीं हुआ है. सो ओवर द इयर्स मतलब वो मस्ती वाले वो सब वो उस तरह के भी गाने सब थोड़े बहुत क्या बोलते हैं मेल आइटम सॉन्ग्स भी किए या फिर डांस पार्टी गाने भी किए. कुछ सीरियस बहती हवा सा था वो टाइप के गाने भी हुए. कुछ जब से तेरे नैना भी हो गया, चांद को भी सिफारिश कर लिया, 4 कदम भी चल लिए. तो फिर मम्मा सुन मम्मा देखे मम्मा ना उससे बड़ा मम्मा, ये सब भी कर लिया. करेंगे तमा 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 तमा. तो हर किस्म के गाने मिले हैं, and I've been able to explore the different sides to me as a singer. लेकिन ये पिछले कुछ साल जब प्लेबैक या बॉलीवुड गाने कम होते गए, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे हैं जो जैसे सूफी स्टाइल है या इस तरह के सॉन्ग्स है जो मैंने कम गाए हैं,
तो अब ये मौका मिला, या फिर जैसे ये पंजाबी हिप हॉप, जैसे मैंने स्नाइपर वो गाना किया, तो उस तरह के गाने मुझे नहीं मिले, तो जिस तरह के गाने मैं अब तक नहीं गाया हूँ, मैं उनको अब एज अ कंपोजर खुद से गवा रहा हूँ. That is so nice. That is lovely because you don't need anyone to, tell you कि आप ऐसे गाने का आप खुद ही कर रहे हैं. You're like आत्मनिर्भर. So that is nice. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिर्भर चल रहा है पूरा. और कहीं ना कहीं देखिए, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, दे बीन कंपोजर्स, तो सो मुझ में भी वो एक कंपोजिंग करने की एक क्या कहूँ, इच्छा तो है. अब क्षमता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उससे मैं अपने गाने कंपोज करता हूँ और बहुत मजा आता है एज अ कंपोजर टू ट्राई डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट स्टाइल्स. सो आई एम एंजॉयिंग दिस होल फेज. No, I'm glad that you're enjoying, and I think that is the reason why the audiences have also, appreciated whatever you've been doing. So yes, all the best for that as well. Okay, so one thing that I know is that मैंने बहुत सारे आपके reality shows and all of these things that I've seen. I love watching music reality shows and music shows in general. तो मैंने एक चीज जो देखी है, which is that you are a very fun person and you do a lot of nice mimicry. I've seen you mimic. वो अब मैं करना चाहूँ भी या ना चाहूँ भी जबरदस्ती ये करवाते हैं मुझसे. अब मेरी मिमिक्री जो पिटारी है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि करो वही करो, रिपीट करो. So I have to get some new but they're very good. They're very good. The ones that you've been doing, they're very good. Can you just do something for us, please? Anything that you would want to? आप बताइए क्या करें. अभी अचानक से आपने पुट मी इन द स्पॉट. बट आपके फेवरेट और सिंगर कौन है? मैं कोशिश करता हूँ कि आपके फेवरेट सिंगर बन जाऊँ. Sir, my favorite singer is this legendary singer called Udit Narayan. So if you could mimic him. अब श्वेता जी देखिए, आपने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, तो मुझे इतना अच्छा लगा. और एक बात आपको बताऊं कि आप ये जिसका इंटरव्यू ले रही हैं ना, शान, ये भी मेरा बहुत बड़ा फैन है. एंड मुझे बहुत बहुत पसंद, वो मुझे बहुत पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद कर लेता हूँ. ऐसी बात नहीं. आप कहे तो मैं आपके लिए, आपके इस खूबसूरत स्माइल पर एक गाना आप कहे तो मैं गा देता हूँ. प्लीज. देखिए क्या गाऊं मैं आपके लिए, क्या गाने गाए उदित जी के तो बहुत सारे. आप बताइए उदित जी का कौन सा गाना आप पसंद करते हैं? अरे सर, नाउ यू पुट मी इन द स्पॉट. जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण. लवली. कर भी रहा हूँ, साथ साथ सोच भी रहा हूँ कि उदित जी सोच के खुश हो रहे हैं. आप सोच रहे होंगे यार बार बार मेरी मिमिक्री करते रहता है. Udit is very sweet. But he's brilliant. I think he's one of the most. बिल्कुल. He's very sweet and he's so मतलब एकदम मोम दिल के हैं. बहुत प्यारे. Yeah. बहुत प्यारे. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. In fact, I'd love to share some of the things, and I always use his, जो उन्होंने मुझे कभी भी एडवाइस किया हो. हम लोग एक जमाना था जब सिंगर साथ में गाते थे, तो मैं कहीं फंस गया था और वो हो नहीं रहा था, तो वो बोल रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, शान ऐसा करो कि सिर्फ ऑटोमेटिकली हो जाए. और वही हुआ. मैं बहुत ज्यादा सुर को लेकर सोच रहा था. बोला आप वो शब्दों को सोचो और वो ऑटोमेटिकली वो जो एक स्ट्रेस या टेंशन हो रहा है ना उस जगह वो निकल जाती है. तो उसके बाद मैं कई बार इस चीज को अप्लाई किया और वो काफी मेरे काम आया. How nice. That तो is ऐसे उदित जी, तानुदा, अभिजीत दा, सोनू निगम साहब, सबने मुझे बहुत टाइम पे जब भी बहुत प्यार मिला है, एडवाइस देते रहते हैं. एडवाइस तो नहीं कहूँगा, सजेशंस देते रहते हैं. मैं गले की ठीक ख्याल नहीं रखता हूँ, तो उस पर भी कई बार बताते हैं कि गर्म पानी पिया करो. शांत, बहुत जोर से बात मत कर तान भैया. थोड़ा सॉफ्टली बात कर यार, तो बहुत स्ट्रेन पड़ता है गले पे. तो so I've got a lot of lovely friends. Babul, we're all my singing fraternity is my big gang. Papon, और गैंग बढ़ती जा रही है. अभी नए दोस्त बने हैं. हमारे कैलाश भाई, अंकित. So लंबी लिस्ट है दोस्तों का. एक नाम नहीं लूंगा ना तो बहुत, क्योंकि वो भी काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव है. अच्छा, आपको इतना प्यार दिया और आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो ये गलत बात है और मैं याद दूंगा इस बात को.
वो कहीं भड़क ना जाए मेरे मिक्का पाजी, तो उनका नाम तो लेना जरूरी था. Why don't you tell me a little about Yaqeen, which is actually a Punjabi song from what I know. So please tell me something about Yaqeen. जी बिल्कुल, मैं मुझे भी कई लोग सुन के यही कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आपने पंजाबी में इतने मतलब लग रहा है कि कोई पंजाबी सिंगर है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद ऑल द पॉजिटिव रिएक्शंस एंड फीडबैक दैट आई एम गेटिंग. But having said that, I know that the Punjabi market in terms of the number of singers or the number of singles is massive. So to make inroads into that is pretty difficult. साथ साथ आजकल हिंदी सिंगर्स से ज्यादा पंजाबी सिंगर्स और पॉपुलर हैं. आप देखें, बॉलीवुड में भी देखें या बाहर भी देखें. लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ. सो मैंने कहा कि क्यों ना एक प्रॉपर ठेठ पंजाबी गाना कंपोज करूं और गा भी दूं. मैं थोड़ा सा गा कर ही आपको सुना देता हूँ तो आप समझ जाएंगे. Please, please. अब जिगरी यार बदल दे वेखे, वह मगरी चल दे वेखे, जिगरी यार बदल दे वेखे, वह मगरी चल दे वेखे, रल दे सा वैरी सारे रल दे वेखे, रिश्ते नाते टल दे वेखे, ते तुलाइया ने उम्मीदा मेरा साथ तू निभावी, पैरा थले ना खींची तू जमीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया. How nice. आप कोई भी लैंग्वेज में कैसा भी गाना गा दो, मतलब the audience instantly connects with it. No matter, I don't even understand Punjabi, but still, Thank God, नहीं तो आप सोच रही होंगी कि क्या कह रहा है. But the good thing about पंजाबी के काफी वर्ड जो है हिंदी से मिलते जुलते हैं. तो वो फील मिल ही जाता है कि वो कहना चाह रहा है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं. दोस्त, जिगरी दोस्त हैं जो बदल गए होंगे, या रिश्ते नाते भी मुझे टाल दिए होंगे. लेकिन अगर कभी किसी वजह से तू मुझसे अलग हो जाए या मेरी यकीन को तू तोड़ दे, तो फिर किसी पर भी मुझे भरोसा या किसी पर भी मुझे फिर यकीन नहीं होगा. All the very best for Yaqeen and for everything else that you'll be doing. Also good luck for your reality show also. Zee पे आपका शो बहुत जल्द आने वाला है. That also looks very exciting, by the way. Do you want to talk about that? बिल्कुल. Our war cry is Bengal Tigers हल्ला बोल. और ये पहली बार इस तरह का शो रहा जहाँ सारे एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ परफॉर्म कर रहे हैं. So it's a massive treat. I think ये जो एक साल का ये थोड़ा सा जो एक it's the storm after the calm आप कह सकते हैं. So it's a very it's a massive show. Salman Khan is the mascot of the show. हमारी टीम के mascot है गोविंदा जी, जो जो हमें बहुत प्रोत्साहन और बहुत एनर्जी देते रहते हैं, और हर एक टीम की ओनर है. We have a very musical, a very young and a lovely owner in Ananya Bidla Foundation. हमारी टीम ओनर है जो खुद इतना अच्छा गाती हैं, पॉप सॉन्ग्स गाती हैं. So मिक्का है, हमारे कैलाश खेर है, साजिद भाई है, साजिद भाई है. The 6 teams, there's of course Javed Ali, there is अंकित तिवारी, और बहुत सारे फीमेल कैप्टन्स हैं, सारे के सारे कमाल के सिंगर्स हैं. So it's going to be absolutely fantastic. We're really looking forward to IPML, sorry. India Pro Music League. IPL भी आएगा पर उसमें थोड़ा टाइम है अभी, पर फिलहाल IPML is the big thing right now. तो जो श्वेता इतना कुछ कह गया, लास्ट में नाम गलत बोल दिया. Anyway, IPML, Indian Pro Music League on Zee TV and ZEE5. Yes, from the 26th of February. Yes, at 8 p.m. हाँ. I remember it. हाँ. और तब तक आप चाहे जो कुछ भी करें, यकीन गाना जरूर देखिए और सुनिएगा. Definitely. Thank you so much, Answer. It's an absolute honor yet again. Let me just say that, talking to you. Thank you so much for all the time and all the very best for everything else that you'd be doing. And I hope कि जल्दी हम दोबारा एक बार फिर connect करें. Hopefully ऐसे नहीं, maybe in person, and talk a little more about all of your amazing songs. जरूर Shweta. All the best to you too for a wonderful future ahead. Yeah. Thank you, sir.